Okay, guys, am I audible now? Yeah. Yes, sir. Okay. Now I will start from where this book starts, and I'm not going to share the book with you because it is under copyright. So I can only. That's why I will not upload the recordings. So if you miss the class, so you will be missing everything possible which is there. I request everybody to be kindly on the mute mode. It hurts my ears a lot. So always remember that there are set of chartings platforms you have: TradingView, Investing, Fires, Zerodha, TX3. You know why they are so colorful always? Because these colors incite some kind of a reaction in our brains, and we tend to play more. We play more. So जब आप कैसीनो में जाते हो तो रंग बिरंगा होता है, तो आपको रंग बिरंगे में वो एक अजीब सी सेंसेशन आती है बॉडी में कि हाँ भाई मैं अब ये ट्रेड करना है, ये मैंने करना है, ये बाजी मेरी तरफ की जाएगी. Which seldom happens. Same way, you have candlestick charts which is talking to you. आपके सामने कैंडल बोल रही होती है और आप उसको दूसरी तरीके से लेते हो. Now today class is on a very simple topic, and it is a very simple thing is what is known as top-down analysis. This is the meaning of the classes is top-down analysis. What actually it means is higher time frame. Good evening, Kamal sir. Good evening. Higher time frame is to be respected. कि बड़े time frame की आपने respect करनी है जो मर्जी हो जाए. अब हमने जो आज time frames देखने हैं, everybody is comfortable in खिचड़ी ना, English and Hindi combined. Yes sir, yes sir. Okay. So हमने जो time frame देखने हैं वो हम शुरू करेंगे month, weekly, daily, 4 hourly. And last में जो हम होएगा that is 5/15 minutes. हमने इस ऑर्डर में नीचे जाना है, हमने इस ऑर्डर में ऊपर नहीं जाना. हम ट्रेडिंग क्या करते हैं, हम 5 मिनट में ट्रेड लेते हैं और सोचते हैं ये मंथली रेजिस्टेंस पे जाके बेचेंगे. होता क्या है आपके साथ, 2 मिनट में ट्रेड उल्टा घूमा और आपके स्टॉप लॉसेस सेट. बिकॉज हम ये जो इंपॉर्टेंट पीरियड है हम इसको इग्नोर करते हैं. एवरीथिंग हैज इट्स ओन मीनिंग. मंथली चार्ट का अलग मीनिंग है, वीकली पे डिफरेंट चीज देखनी, डेली पे डिफरेंट देखनी, 4 आवर्ली पे डिफरेंट देखनी. एक्चुअली पवन सर ने मेरे ऑफिस में बैठे ना एक दिन वो आए थे तो उन्होंने ये किताब देखी थी पड़ी हुई मेरे सामने. देयर आर 7-8 books which are lying in my office, so whenever I get time I normally read it. So today I am going to show you directly from, I have not made any PowerPoint presentation. मैं कोई PowerPoint की presentation कुछ नहीं बनाया. आज मैं आपको डायरेक्टली किताब से दिखाऊंगा कि किताब में क्या लिखा हुआ है. These are name of the book, please, if you don't mind. Sir, I cannot disclose anything. Please do not try to interrupt. I request you, please, it's a humble request. I will not share anything with you all. This is under copyright. I don't want to go to be punished for these things. So I'm requesting you, please do not ask it again. Thank you. So I will be teaching you right from the book. So you will have a complete kind of an idea is that I'm not making anything which is from my mind. So we will start it from the book directly. Can you see my screen now? This is the importance of, no. Yeah, okay. Now this is an importance of the time frames. A rule of thumb is always follow what is the higher time frame says. I repeat again for everybody's, this thing is the higher time frame is to be respected. And please remember, it is nothing a rocket science. पवन सर ने बड़ी बारी आपको कराया हुआ है, तो अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो वो भी आ जाएगा.
So what I said to you all was monthly, weekly, daily, 4 hourly, and last is 5 to 15 minutes. We are basically looking at swing trade setups. हम स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं. प्लीज डू नॉट टेक इट कि ये इंट्राडे में आप किसी तरह करोगे. इंट्राडे में आप एक तरीके से कर सकते हैं बहुत अच्छा. आपकी वीकली सपोर्ट पे अगर स्टॉक आया हो तो उठाए. Now every time frame which we are going to discuss here has their own meaning. आपने हर एक टाइम फ्रेम में डिफरेंट चीज देखनी है. ये नहीं आपने मंथली का भी रेजिस्टेंस बनाना है, मंथली का भी सपोर्ट बनाना है, वीकली का भी बनाना है, डेली का भी बनाना है, 4 आवर का भी बनाना है. अगर आप एक्चुअली इन सब का किसी का बनाते हैं तो क्या होता है आपकी. लेट्स से ये आपका मंथली का चार्ट है निफ्टी का. ये एक लाइन लग गई, ये एक लाइन लग गई, ये एक लाइन लग गई. अब पवन साहब भी कहेंगे मैं थोड़ी उल्टी पुल्टी लाइनें बनाता रहता हूँ, मेरी आदत है. अब इसको मैं कम करूंगा. वीकली पे मुझे ऑलमोस्ट यही रिस्पेक्ट हो रहा है. अब मैं डेली पे जाऊंगा तो मेरा एक बीच में और फ्लिप लेवल आ गया. मैं एक यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करूंगा. ठीक है. अब मैं इसको 4 आवर्ली पे जाऊंगा तो मेरा एक लेवल ये भी आ गया ऊपर. सो अगर मेरा और एक और लेवल आ गया, मेरा ये भी एक लेवल नीचे का है. सो आप ऐसे बनाते जाए तो आपको आप किस लाइन पे ट्रेड करेंगे. So the problem is we draw so many lines on the chart that we ourselves don't know कि किसकी क्या वैल्यू है. इससे अच्छा क्या करो, रिमूव ड्राइंग्स, कैंडलस्टिक बंद करो. ये आज भी किसी ने ग्रुप में बोला था, किसी को, मयंक को बोला था मेगा किसी ने कि अगर आप इतनी लाइन ड्रॉ करो कहीं ना कहीं तो स्टॉक रुकेगा ही ना. इट इज अ फैक्ट. मैंने अभी आपके सामने बिना देखे मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं. हो गया ना, वहीं पे रुक गया. मैं आपको कोई भी लॉजिक देके ये समझा दूंगा कि ये ऐसे है. आप ऐसे ब्लाइंडली भी ड्रॉ करके कर सकते हो ट्रेड, बट फिर वो तो फिर अंधाधुंध गोलियां चलाने जैसी बात है. So this whole system, whole exercise is going to be on drawing and understanding the importance of all these 4 time frames. 1, 2, 3 and 4. ये हमारा कोई अलग से पर्पस सॉल्व करेगा. ये हमारा अलग से पर्पस सॉल्व करेगा. एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, please do not try to put your charts or try to take any recommendation from me. This is just a theoretic class for everybody. This is purely theory. I'm not going to take any charts. I will just show you on gold and I will show you on Nifty only. That's it. These are the time frames which we are going to discuss one by one. It's a beautiful book. I am saying it's lovely book. I follow it a lot. Now, what is monthly time frame? Where one candle is for a month. It represents कि एक महीने में क्या एक्टिविटी है. मोटा मोटा बताते. जैसे it's on this candle, we can say sellers literally massacred the stock or the whatever we had a currency. They massacred it very badly. दबा के गिराया. दबा के मतलब दबा के गिराया शेयर को. कोई मतलब कि कोई मौका ही नहीं दिया. सिर्फ बायर्स फंसते गए. सो जब बायर्स फंसते जा रहे, इसका मतलब इसका मोमेंटम नीचे की तरफ है. M for monthly and M is momentum. हमें लार्जर टाइम फ्रेम पे ये बता रहा है ये स्टॉक किस मोमेंटम में जा रहा है. मैं आपको एक एक करके साथ साथ में निफ्टी पे भी दिखाता जाऊं. सो M means monthly, M means only momentum. We are only looking at where the momentum is going.
We are not looking at anything else. We are not drawing any time, any line onto it. अब आपको जरा सिंपल में निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं. मंथली टाइम फ्रेम में आपको निफ्टी क्या लग रही है? अभी किसी ग्रुप में बड़ी डिस्कशन हो रही थी कि हम बुलिश हैं, हम बेयरिश हैं, ये बुल है, कल निफ्टी ने 17,200 ले जाना है, 18,000 लेके जाना. आई डोंट नो कहां जाना है कल निफ्टी. आई हैव नो आइडिया. मेरे सामने चार्ट क्या बोल रहा है? Anybody who can tell me where the momentum is right now? Which direction momentum is showing you? Down, sir. How, sir? Sir, it's up, still up. Sideways, sir. Okay. Next. Anybody else? Up. Okay, sir. कमलजीत सर वो आप है, अभी भी आप है. सर अब सब ठीक है अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे ठीक है. साइडवेज है, ये है, कुछ है. अब इसको आप एनालाइज डिफरेंट वे करें. मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है एट प्रेजेंट. अगर आप इसको ध्यान से अगर प्लॉट करें, आपकी बैंक, आपकी निफ्टी एक रेंज बाउंड मार्केट में, आपका जो आप कहते हो हायर हाई हायर लो कहां बन रहे? ये तो अब साइडवेज में घुस गया है. लो बना के मार्केट अब इधर गई. अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से बाइसेक्ट करेंगे तो आपको एक छोटी सी चीज नजर आएगी. सर प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा. जय साहब प्लीज, रिक्वेस्टिंग यू. जरा ध्यान से आप नोटिस करें क्या होता है यहाँ पे. See, don't go by whatever everybody is saying. FII data, all data are made up because of one thing is low, low, this high, this high, this high, this low. You had another low. You had an high, failed to break the high of this two. अब इस कैंडल को देखो ध्यान से. इसका तो क्लोज भी इसके नीचे चला गया, लो के नीचे चला गया. और आपकी जो इस मंथ की कैंडल है वो तो एक बड़ी छोटी सी डोजी बनी है अभी. अपने वे से इसको एनालाइज करो. हाउ यू टेक इट. कोई साइडवेज कहता है, कोई अप कहता है, मैं डाउन है, पर मेरे लिए अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन है. अगर मैं सिंपल कैंडल स्टिक को पढ़ूं, इसका लो काट दिया इसने, ये तो उसके लो क्लोज के नीचे ही चल रही है अभी. ये तो ऊपर जाने की तो बात ही बड़ी दूर की है. अभी तो इसका ये लो तो काटे पहले, ये वाला जहां क्लोज हुआ है इसके ऊपर तो जाए पहले. पूरा महीना पड़ा है, कहां जाएगी वी डोंट नो. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग ओनली ऑन द मंथली टाइम फ्रेम. अब आप यहां से देखो मोमेंटम सीधा ऊपर जा रहा है आपका. दिस इज प्योर बुल मूव. इसको बुल मूव कहते हैं. मोमेंटम हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है. आप नीचे आके बाइसेक्ट करें. ये कोविड वाली थी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल उसने इसका लो नहीं काटा, ऊपर 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 मोमेंटम ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है. अब ऊपर जाते जाते मार्केट अब साइडवेज होने लगी है. साइडवेज में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मोमेंटम थोड़ा सा डाउनवर्ड्स या मैक्सिमम एक रेंज बाउंड मार्केट लग गया. यूक्रेन और रशिया के टेंशन में हम बुलिश नहीं हो सकते. सो डोंट गो आफ्टर दिस ऑल डाटा एंड ऑल दैट स्टफ. जो लोग डोंट गेट कैरीड अवे बाय एनीथिंग. अब एक महीने में देयर आर हाउ मेनी मंथ्स, हाउ मेनी वीक्स इन ए मंथ? एनीबॉडी? 4 to 5. 4 or 5. 4 week. 4 weeks, okay, approximately. So let's go and see what does book says to us. We are looking for big candles. They are indicating huge orders. This is on monthly time frame. We are only looking where the momentum is. We are only looking where the momentum is. हमारा मोमेंटम अभी मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ है. आप में से किसी को ऊपर लग रहा है, किसी को साइड. दिस इज नॉट कि आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है.
सर आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। मुझे मोबाइल यूज करने के लिए मैं डिफरेंट तरीके से करूंगा, आप डिफरेंट तरीके से। नाउ वी मूव टू वन टाइम लोअर। व्हाट दिस वन टाइम लोअर क्या है? मंथली के बाद हमारे पास आएगा वीकली। वीकली में क्या होता है? एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। सो नाउ वी विल बी गेटिंग 4 कैंडल्स। अब हमने इन 4 कैंडल्स को रीड करना है कि ये 4 कैंडल्स हमें क्या बोल रही है। हो सकता है आपके पहले 2 हफ्ते ऊपर जा रहे हो, अगले 2 हफ्ते वहां पे रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, आपकी ये कैंडल आ गई, आपका तो मोमेंटम नीचे जा रहा है, आप बाय में कैसे बैठ सकते हो इसमें? So you need to step down your approach. Now we come to weekly time frame. अब हमारी एक कैंडल की जगह 4 कैंडल्स हो जाएंगे. So we will be having 4 candles. So we will read all those 4 candles. मैं आपको जो बोल रहा हूं मैं किताब से पढ़ा हुआ, मैंने रट ली है किताब पूरी। मेरे पास ये जो किताब है ये 128 पेजेस की है अप्रोक्सीमेटली, सॉरी 90 पेजेस की, ये मैंने रट ली है पूरी। और ऐसी 10 किताबें हैं जो मैं टोटल पढ़ रहा हूँ आज। जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपको वो देखना कि मुझे वही है। It's great to look at the structure, premium price and strong areas of bouncing. अगर आप छत से बॉल फेंकेंगे तो वो फर्श पे आके लग के फिर बाउंस करेगी। That means this is the support. So we are looking at the support on the weekly time frame basis. ट्रस्ट मी, अगर वीक का सपोर्ट टूट गया तो एग्जिट करने में ही समझदारी है। पवन सर ने 3 क्लासेस में ये बात पढ़ाई थी आपको कि वीकली का सपोर्ट कट गया। प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज consult your financial advisor before you take any of these concepts. You are free to leave the session, you are free to take anybody's advice, you can discard me, you cannot take it, but please go and acquire. तभी मैंने आज किताब खोली आपके सामने, क्योंकि बड़े लोगों को लग रहा होगा कि हमने आपको कोई चीजें नहीं करा रहे। आज मैं आपको किताब से करा। Now this is great to look on a weekly time frame is the structure, the price and the support and resistance. More than anything it gives us 4 candles to read. अगर दोनों चारों कैंडल्स ऐसे बंद हो जाती तो हमें पता पूरा मंथ में एक डोजी बन जाएगी। तो आपने ये देखना है कि इस डोजी में भी क्या हो रहा है, कि मार्केट ऊपर गई, नीचे गई और कहां आके बंद होगी, घूम के यहीं पे आके बंद। So we will be seeing all these things. Did the last 2 weekly candles close very strong or it does like losing momentum? मैंने यही वर्ड आपको बोला था, मैं यही वर्ड रिपीट कर रहा हूं। Now we are going to find the strongest support and resistance areas. Please note this thing as per the concept of this trader. This is the strongest support and resistance area you will get for the price. अब कोई इसको कैसे बोलेगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे होता है? एक कैंडल टच करे, 2 कैंडल टच करे, 3 कैंडल टच करे, 4 कैंडल टच करे। Anybody who can tell me this thing? सर कोई बता सकता है कि कितने टच मिनिमम होने चाहिए कि that you should have it will be considered a strong area? 2. Sir, at least More 3. than 2, sir. 3 More than- candles. Yeah, it should be at least 3 points. Now let's go and see. This is the monthly chart. Now I convert it to weekly chart. Tell me, where did Nifty bounce from? Please, 1, 2, 3, 4, 5. Right, sir? Right, sir? And what is the resistance? I will personally put the resistance at the highest possible point.
or maybe at this point I will keep it here. Come on, somewhere here. This is my first resistance. Now, have we got a support and resistance for Nifty? So this is the strongest support and this is the strongest resistance. Now let's see why it shows. अब आपको कोई मुझे ये कह रहा था कि लास्ट 1 month में कैंडल्स देखो मोमेंटम ऊपर को जा रहा है. Sir, now I will correct you, please, sir. Don't take it in another sense. 1, 2, 3, 4 and 5th candle. बताओ किस कैंडल का लो नहीं टूटा है? So this is the place where you are supposed to be very careful in making a decision. Strongest support and resistance area is on weekly time frame. As per this book, I may not be that good. So this is the strongest support and resistance areas. And this is the area where we think the price could potentially reverse and change the direction. Any issue still now? Any confusion still now? Any issue still now? Because I'm being very slow. I will go very slow today because this is 8 or 9 pages only today. After that, it is totally a different book. This is no indicator book. They do not teach any indicator. This is purely price action books. So we get some strongest support and resistance areas. And these are the areas from where the price can potentially reverse. So somebody who said me, sir, am I audible? Sir, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Because there was a notification which had come on my mobile. Now I come back to the same thing and I say you again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candles means 2 months. Isn't it look that way, sir? और इसको हम क्या कहते हैं? Lower highs and lower lows. अगर कल बैंक निफ्टी रेजेस, कल अभी एक ग्रुप में बड़ी सी फ्यूचर्स ग्रुप में बात चलती 17,200 टच करते हैं, is the level we are seeing it, and from there we should be looking downwards soon. If this area is not respected, we are looking at this point. So we are bound to have a bullish market tomorrow. Because उसने अगर अपना सर्कल कंप्लीट करना है तो उसने ऊपर जाना है. अब वो यूक्रेन तो यहाँ पे शुरू हुआ है, तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ क्या शुरू हो रहा था? ये तो यूक्रेन से पहले की बात है आपकी. तब आपके फेड की बात आ गई बीच में. सर, मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलती है, हमेशा याद रखना. और मार्केट का स्ट्रक्चर अब थोड़ा सा डेंजरस सा हो रहा है मेरे लिए. तो मैं इसको ऐसे एनालाइज कर रहा हूँ. आई मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट शेयरिंग माय नॉलेज विद यू ऑल. सो वी हैव नाउ कम टू द वीकली टाइम फ्रेम. सो वीकली टाइम फ्रेम से नीचे हमारा कौन सा टाइम फ्रेम होता है? डेली. लेट्स सी व्हाट डज डेली शो अस. सर, अब आप बताएं, आपका डेली टाइम फ्रेम उसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर, आपने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइंस नहीं हटानी. आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, हल्का फुल्का ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे ज्यादा मत करना कुछ. बिकॉज मतलब फर्स्ट टेंडेंसी क्या होगी, यार मैं ये लाइन ना उठा के यहाँ खींच के कर देता हूँ, ये ना बड़ी अच्छी सही लग रही है लाइन, है ना? दिस लुक्स मोर आर्टिस्टिक. रिमेंबर, price in the recent future moved from this area, not from this area. So आपने recent data को करना है जो आपके weekly time frame के according चल रहा है. So always respect your weekly time frame more than anything else. Now we come on to daily time frame.
एक ट्रेडिंग वीक में, in one trading week we have approximately 5 days. So we are likely to have approximately 20 to 25 trading days in a month. अब हमारे पास बड़ा डाटा है. अभी तक हो सकता है वीकली में ऐसे बन रहा हो, पर डेली में लोअर लो शुरू हो चुका हो. So we don't know. Let's see and what is written in the book. This is the time frame where we are supposed to enter and take the positions. ये उन लोगों के लिए है who are very busy professionals, who are very busy, who don't have time. They can come down in the evening, sit down and see, because आपने daily time frame पे काम करना है. This is where you will hunt the trades. तो कहते हैं ना, शिकारी शिकार करने के लिए बैठा है. And are king every single day. आपको 2-3 ऐसे स्टॉक जरूर मिलेंगे जो उनके अपनी वीकली सपोर्ट पे. आज मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं. आज मार्केट इतनी गिर रही थी, एक स्टॉक पागलों की तरफ बढ़ा. एनीबॉडी? पवन सर को पता है, मैंने पवन सर को बताया था. हिंडाल्को तो इज देयर. वरुण बेवरेजेस, वो खुला ही 60 रुपीज आपका, और वो कहां से उठा मैं आपको वो भी दिखाऊंगा. मैं इतने स्टॉक्स नहीं देखता ना, तो इसलिए मुझे आता नहीं है. पवन सर मुझे बताते हैं. सो अब हम क्या देखेंगे? हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा मोमेंटम, वीकली टाइम फ्रेम में हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. अब आप हर टाइम फ्रेम का मतलब समझते हैं. डेली में हमने क्या देखना है? डायरेक्शन, मोमेंटम, प्रीमियम प्राइस एरियाज, और हम अपने स्टॉप लॉसेस एंड एंट्रीज आ गई हैं, एंड प्रॉफिट एंड एग्जिट जोन्स आ गए. अब हमारे में एंट्री, एग्जिट प्लस स्टॉप लॉस ऐड हो गया कि अब हमने इस टाइम फ्रेम में घुसना है. सो आपके अब 3 टाइम फ्रेम हमने डिस्कस कर लिए. मंथली, मोमेंटम, वीकली, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डेली में एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉसेस. या तो हमारा एग्जिट होएगा, या हम स्टॉप लॉस एग्जिट हम करेंगे, या प्रॉफिट के साथ, या हम लॉसेस के साथ जाएंगे. So this is the place where we are going to fine tune our this thing entry. Daily time frame में सपोर्ट पे हमें स्टॉक मिल रहा है, we will enter the stock. हम वीकली पे थोड़ी करेंगे. वो हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद देखेंगे, वो तो पहली हो सकता है 500 रुपए ऊपर भाग गया, या इट इज 10%. So जब डेली पे आएगा सपोर्ट पे, then we are going to see it. So let's go and see it on the daily time frame. ये हमारी वीकली पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, और हम इसको डेली पे करते हैं. सेलर्स गायब हो गए ना सर आपके यहाँ पे? यू डोंट हैव सेलर्स आउट हियर बिकॉज ये इसका सपोर्ट जोन है. आपको एक कैंडल रेड आई उस दिन, जिस दिन इसने तगड़ा पंगा पड़ा है जो रशिया यूक्रेन का, उसके बाद जो मर्जी करो, अभी तक इस जोन को रेस्पेक्ट कर रहा है. तो ये हमारा एंट्री एरिया एक हो गया. फॉर अगर किसी स्टॉक में है तो दिस इज वेयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया यू शुड बी एबल टू टेक. डेली टाइम फ्रेम में इसके जितने पास से पास अगर आप लोगे, उतना आपको बेनिफिट होगा. लेट मी शो यू वरुण बेवरेजेस टुडे. ये देखो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है. नाउ लेट मी रिमूव एवरीथिंग. ये मेरा शेयर बहुत फेवरेट है, ये मेरे फेवरेट में से है, क्योंकि ये मेरी इस लिस्ट में है. ये अभी हम मंथली में हमें क्या मिल रहा है इस शेयर में? ये ऊपर जा रहा है, इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ है. नाउ आई सी ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, कहां पे 4-5 टच हो रहे हैं रिसेंटली? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार टच हो रहे हैं ना आपके. ये मेरा सपोर्ट एरिया हो गया. टॉप में देखो, ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया.
अब बताएं सर, आज आपको पहली ही कैंडल पे, ये 25 फेब की है, सॉरी, ये परसों इसने आपको पूरा फुल फ्लेज बाय सिग्नल दिया हुआ। 9:30 पे इसका बाय था, ये आपका स्टॉप लॉस, सॉरी ये तो डेली में आपका स्टॉप लॉस ये बना, एंड ये आपका टारगेट है। 83 रुपीज शेयर ऊपर गया, और कहां से उसको सेल बची? राइट एट दिस पॉइंट, और वो पॉइंट हमें कहां से मिला? यहां से मिला। दिस इज ए वीकली रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक। और वीकली रेजिस्टेंस को उसने कितने प्यार से रिस्पेक्ट किया। अब जब तक इसको तोड़ता नहीं, इसकी नेक्स्ट मूव शुरू नहीं होनी, हम बैठे रहेंगे। Now this is how we look for our trade setups. इसके बाद हमारा चौथा टाइम फ्रेम है 4 आवर। वन ट्रेडिंग डे में कितने आवर्स होते हैं सर हमारे? 6 hours and 15 minutes। प्लीज माइंड मत करना, मेरा माउस खराब हो गया। 6 hours and 15 minutes, प्रैक्टिकली 4 घंटे की हमारी 1.5 कैंडल के करीब हमारा बनती है। दिस इज 1.5 कैंडल्स वी विल बी मेकिंग। प्लीज डोंट माइंड, मेरा माउस खराब कर रहा है, ट्राइंग टू डू इट। सो इन 4 hours, अब हमें 4 hours में क्या बताना? हमारा मोमेंटम हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, एंट्री एग्जिट हो गया, स्टॉप लॉसेस हो गया। 4 hours हमें इसमें से थोड़ा सा फाइन ट्यून और करें। दिस इज द टाइम फ्रेम टू पुट द पजल्स टुगेदर। जो हमारा बीच में कोई इंफॉर्मेशन 2 टाइम गैप में गड़बड़ आ रही थी, हम उसको इस जगह पे फाइन ट्यून करेंगे। ये बुक के लेटर पार्ट में है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने दोबारा पवन सर को, अगर याद होएगा, मैंने पवन सर को बोला था मैं 4 hours के साथ मुझे प्यार हो गया, क्योंकि हम दोनों एक कॉमन सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो मैंने उनको बोला मुझे 4 घंटे से प्यार हो गया, मुझे इतना तगड़ा ये लगता है। सो दिस इज ए पजल सॉल्विंग एरिया फॉर मी। जब मैंने छोटा स्विंग ट्रेड करना है, मैंने 4 hour को पकड़ना है। जब मैंने बड़ा स्विंग ट्रेड करना है, मैंने वीकली सपोर्ट को पकड़ना है। आपका वीकली सपोर्ट पे स्टॉप लॉस बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें। वील कम ऑन टू दिस पार्ट। 4 hour will tell us exactly when is the time to enter, because अब ये bifurcate daily time frame को भी इसने छोटे हिस्से में कर दिया। You can just fine tune your start entry and exit। अगर 4 hour का सपोर्ट, आपका वीकली सपोर्ट 4 hour की कैंडल ने तोड़ दिया, तो आपको डेली तक की वेट करने की जरूरत नहीं। यू एक्सेट द ट्रेड इमीडिएटली। ये हमें बचाने के लिए है, ये हमें फाइन ट्यून करने के लिए है। ये इसका मेन रोल किसी और चीज में आता है। अभी तक कोई इश्यूज किसी को? अभी चलो हम लेट्स गो एंड सी। दिस इज डेली टाइम फ्रेम। नाउ आई गो टू 4 hourly टाइम फ्रेम। अगर आप डेली कैंडल की वेट करते तो आपका एग्जिट यहां होना था, बट 4 hour में आपका एग्जिट यहीं हो जाना था। अब आप इसको ध्यान से देखें, बहुत धीरे से करें। अगर आप इसको वीकली डेली टाइम फ्रेम पे लगा रहे हैं, आपकी कहां पे सपोर्ट? यहां ऊपर आ रही है। अगर आप इसको 4 hourly पे करते हैं, तो आपकी एंट्री यहीं पे रीटेस्ट पे भी आपको बाय मिल रही है। एंड योर रीटेस्ट इज एट व्हाट लेवल? 927। 3 रुपए और आपके जेब में जा रहे। डेली टाइम फ्रेम में हमारी एंट्री थी 931.90। 4 hourly में वही हमारी एंट्री आ गई 928.15 और 929। 2-3 रुपए और हमारे बच गए। अब आप बोलेंगे सर अब ये 5 मिनट और 15 मिनट कहां गए? सो 5 मिनट और 15 मिनट को यूज करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। When the stock goes up, it goes like this: higher high, higher lows, higher highs, higher lows। अगर आप 4 घंटे के हायर हाई हायर लो करते रहेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस पहले हिट होएगा, बाद में आपका इवन प्रॉफिट कोई बनेगा।
So this is where the role of 15 minutes come. What is the low of this stock? पवन सर पढ़ाते थे बहुत अच्छा, हायर हाई हायर लो, हर लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करो. सो अगर आपने ट्रेल भी नहीं किया था, आप तब भी 990 के पास निकल जाते. अगर आपने ये लेना था, यहाँ पे उसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया. So you exit the trade out here. So 15 minutes is only to ride the trend. आपने जो एंट्री ली है वो आपने 15 मिनट पे राइड करनी है. आपका जैसे कटेगा यू जस्ट लीव इट. ये आपका लो था, ये नहीं कटा, बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो. यहाँ पे अपना ट्रेल स्टॉप लॉस ला के रख दो. नहीं, हमारी तो एंट्री यहाँ पे हुई थी और ये हमारा स्टॉप लॉस था नीचे वाला. ये वाली कैंडल हमारा स्टॉप, ये 883 हमारा स्टॉप लॉस. ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ये आपकी एग्जिट होगी. या तो आप यहाँ एग्जिट करते अगर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छी तरह आता है, नहीं तो दिस इज द प्लेस यू शुड हैव एग्जिटेड. नाउ दिस इज डन फॉर द डे. आई थिंक सो. ज्यादा बोर नहीं किया मैंने. आई विल जस्ट रिपीट इट. इज द ओनली यूज टू मॉनिटर आवर ट्रेड्स. मैं आपको किताब पढ़ा रहा हूं आज. सॉरी, इज ओनली टू मॉनिटर आवर ट्रेड्स. दैट ट्रेड शुड बी मूविंग इन आवर डायरेक्शन. If it's a bullish structure and it breaks the previous low, the price action is changing and let's get out of the trade. We should pocket money into our pockets, pocket some money and just leave it and find the next trade. So this is the importance of chart time for all of you. This is known as top-down analysis. What we do is we do the reverse. हम 5 मिनट की सपोर्ट बनाते हैं और सोचते हैं मंथली पे एग्जिट करेंगे. And that's why 99% of us fails. मैं बार बार बोलता था ना. And it is also one of the biggest factors why they are not being consistent and profitable traders. Top-down analysis put each information to execution to the perfection. And when you have a good execution plan, then you are bound to make a lot of money. So tomorrow we will be tomorrow or day after, whenever. Just hold on, I will just show you what we are going to do is now we will break down everything into a very small pieces, including we will learn how to do trading, how you trade these VIX. So any more questions, sir? Anybody? Or Pawan sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Mr. Ankit, I had said it in the start of this thing is I will not share this PDF under any circumstances. This is under copyright. I cannot share with anybody. I'm showing you that is more than enough for me. I cannot share this in any form. Please, I'm very sorry. I have deliberately changed the name of the book as master book. It is named something else. So I've deliberately changed it so that nobody can pick up the name because it's not correct on my part. Somebody has shared it with me. So I'm just sharing with you all. पवन सर ठीक है कि अब आप कुछ पढ़ाना चाहेंगे? अब मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी दिखाता हूँ. नहीं सर, आज आप ही करवाइए. ओके, मैं आप लोगों को बैंक निफ्टी दिखाता हूँ. Let me remove all the drawings. सर बैंक निफ्टी कहाँ है आपके हिसाब से? मोमेंटम किस साइड है उसको? अभी तक बैंक निफ्टी इज ऑन साइडवेज मूव, पर ये कैंडल जो अभी मार्च की बनी है ना, ये बहुत गंदी बनी है. ये इस लो के नीचे है और ऑलमोस्ट इसके लो को टच कर रही है. So it's a dangerous candle. Now let's see what happened to Bank Nifty in last few days. ये आपका लास्ट बैंक निफ्टी का हाई है, जो इसने सबसे ज्यादा हाई लगाया था 41,000. नीचे
नीचे नीचे। अब आपको इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा एक चीज दिखाता हूं जो इंपॉर्टेंट है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ सर, somebody has unmuted him। अब उनसे कहेंगे पता नहीं क्या बनाते रहते हैं। आपके वीकली टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बना के बैंक निफ्टी नीचे गिर रही है। द फॉल इज बिग। अब मेरे लिए जो बैंक निफ्टी का पंगा है सबसे बड़ा है कि आई एम लुकिंग एट बैंक निफ्टी टू कम टू मी एट दिस पॉइंट 34,445 to somewhere between 33,800 is a level I am looking at bank nifty। अगर मैं अब थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं और मैं इसको यहां कर देता हूं just to make it little more looking like this, और इन विक्स को करता हूं, then also my lower level is close to 34,000। ये नियरली बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा जोन है और एक वीकली टाइम फ्रेम, एंड दिस इज माय रेजिस्टेंस ऑन द टॉप। आप नंबर ऑफ कैंडल्स टचिंग आप देखो इज मिनिमम गोइंग टू बी 1 2 3 4। आई एम नॉट वरीड द विक इज गोइंग वेयर, आई एम नॉट कंसर्न्ड, आई एम ट्राइंग टू टच मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखो, isn't it respecting that zone? सर बैंक निफ्टी आपके बहुत क्रूशियल पॉइंट पे है, ये डेली टाइम फ्रेम में। अब इसको आप 4 आवर्ली पे देखो, पहली बार यहाँ पे बायर्स की एंट्री हुई और वो कौन सा एरिया है? वीकली सपोर्ट एरिया। दिस इज योर वीकली सपोर्ट एरिया। अब हम इसको 15 मिनट पे करते हैं। अभी तो इसने पहली स्विंग ही नहीं ली है 15 मिनट पे। लोअर लो साइडवेज ऊपर गई है, इसने स्विंग लेना तो अभी नीचे आना ही है। हो सकता है गैप अप खुले फिर स्विंग ले, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर जाए। वी डोंट नो विच वे इज गोइंग, पर स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए मार्केट को ये जरूरी है। ये गया आपका लो आया, दिस वन लो लो, नाउ यू सी इट। आपकी कहां पे बैंक निफ्टी आके रुकी है आज? सारा दिन लोग पुट्टे शॉर्ट करे जा रहे थे कि सॉरी कॉल शॉर्ट कर रहे थे कि यहां से बैंक निफ्टी गिरेगी, वो आपके वीकली सपोर्ट एरिया से उठी। सो दैट इज द पावर ऑफ वीकली सपोर्ट एरिया। और अब आपकी बैंक निफ्टी ऊपर गई है। अब आप इसको 5 मिनट पे करके देखें। डू यू सी एनी स्विंग? दिस इज अ लोअर लो, लोअर हाई, lower, same, almost the same level low. This is where the structure of bank nifty changed for the first time. उसने जब लो नहीं काटा और यहीं से मार्केट ने एक स्विंग लिया और ऊपर गया। अभी तो एक स्विंग तो बनती है ना नीचे, फिर ऊपर जाए। अगर गैप अप खुलेगा तो ये नीचे आएगी आएगी बैंक निफ्टी, उसके बिना ऊपर नहीं जाएगी। कभी ऐसे नहीं होता कि ऐसे ही ऊपर रॉकेट जाता है। ये नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी, या ऊपर खुलेगी नीचे आएगी फिर ऊपर जाएगी। दैट इज हाउ द स्ट्रक्चर्स गेट कंप्लीटेड। आपके सामने ही है, हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई हायर हाई लोअर हाई सेम लेवल लो। स्ट्रक्चर तो आपको यहीं पे बता रहे हैं ना, वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो कुछ तो हुआ है ना गड़बड़ की, यहीं पे सपोर्ट पे आके हुआ है और वहीं से मार्केट खींच गया ऊपर। सो आपके सामने सब कुछ हो रहा होता है एंड वी स्टॉप आवर आईज। सो दिस इज व्हाई आई शेयर्ड द बुक टुडे, कि मैं आप लोगों को बुक से पढ़ाऊं तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे। So tomorrow we may be doing, tomorrow or day after we will be doing the market structures on the monthly charts, weekly charts, 4 hourly chart, 15-minute chart। ये कैसे हम करते हैं, ये कैसे हम लेवल्स ड्रॉ करते हैं। आप हर लेवल को ट्रेड कर सकते हो। ये मैं तो इसके नफरत करता हूँ इतनी लाइंस का, आई डोंट लाइक ऑल दीस लाइंस। देन डेली चार्ट्स में क्या होता है, व्हाट इज कन्फ्लुएंस ट्रेडिंग,
then how you make a 15 minutes chart जो intraday में करते हैं, structures कैसे आप define करते हैं, price action में what does a bullish engulfing and all this candle mean, shooting star में क्या होता है, हम कैसे देखते हैं, मंथली वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल बन रही है उसका क्या मतलब है, हैमर का क्या मतलब होता है, व्हाट इज अ डोजी ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम मींस. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, व्हाट हाउ यू ट्रेड विक्स, हाउ यू ट्रेड विक्स. ये मेरा आजकल फेवरेट है कि ये मैं बहुत ट्रेडिंग करता हूँ. बट देन व्हाट इज अ पैटर्न ट्रेडिंग, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैटर्न ट्रेडिंग, हाउ यू ट्रेड ए डबल टॉप. ये आपको सबको बताते होंगे. देयर आर 2 3 or 4 ways to trade a double top. Then you have a W pattern and a V shape, 2:2 confirmation, 2x2 confirmation. It's a beautiful concept. बहुत प्यारा है ये concept आता है. ये 1 2 3 4 यहाँ पे हमने ट्रेड लेना शुरू करना. ये हमारी एंट्री है कॉन्फ्लुएंस पे, जो आपकी आज बैंक निफ्टी में दिखाई दी. ये अगर किसी ने सिंपल ट्रेंड लाइन पे भी ट्रेड किया होता, आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये प्लीज डोंट कोट मी एनीवेयर, दिस इज योर ट्रायंगल व्हिच वाज फॉर्मिंग इन बैंक निफ्टी, एंड सडनली बैंक निफ्टी वहां से भागी और जाके रुकी कहां पे सर, आज के डे के ओपनिंग प्राइस पे जाके. सर हर चीज चलती है स्टॉक मार्केट में, आपको देखना आना चाहिए. आज लोगों के नीचे जाते हुए भी स्टॉप लॉस हिट हुए और ऊपर आते हुए भी हिट हुए. मैं प्लीज कर रहा हूं, दिस इज वेयर द कंसेप्ट चेंजेस. आप रिलायंस को देखो, लेट मी शो यू रिलायंस. मैं अब आपके सामने ही है, मेरी लाइंस तो पहले की ड्रॉन है ना सारी. रिमूव ऑल ड्राइंग्स. आज रिलायंस में तो मैंने बेवकूफी की, अदरवाइज आई वुड हैव मेड ह्यूज मनी इन रिलायंस. 1 2 3 and 4 candles. वीकली टाइम फ्रेम है, पहले मंथली में चेक करते हैं क्या है. मंथली में कुछ नहीं था, ये साइडवेज ही घूम रहा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है. 1 2 3 4 ये इसी लेवल पे घूम रहा है, हमने कुछ नहीं कर रहा अभी. ये हमारा वीकली लेवल्स, हमारा प्रैक्टिकली सपोर्ट एरिया, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया, दैट इज 2245, 2245 रुपए वॉज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया. अगर वो टूट जाता तो हमने एग्जिट कर जाना था. अब डेली में देखो आपको कितनी बार उसने एंट्री दी, यहां पे भी दी, यहां पे भी दी, हमने पकड़ा ही नहीं, हमने पकड़ा ही नहीं. अब हम 4 आवर पे देखते हैं. अब बताएं सर, 1 2 3 4 4 दिन, 16 घंटे ट्रेडिंग आवर्स में बैठा रहा, पकड़ लो भाई मुझे, मैं यहां से उड़ूंगा. I picked up it at 2260 today with a stop loss of just 4 or 5 rupees. मेरा किसी और स्ट्रैटेजी के ऊपर था, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप लॉस था. 9 रुपए ये ऊपर गया, मुझे लगा यार अब इससे ज्यादा ऊपर क्या था, कि मैंने चार्ट नहीं देखा था, मैंने एग्जिट मार. कहां गया? आप अपना वीकली का रेजिस्टेंस देखो. मेरी बात मत करो, प्लीज ट्राई टू गो एंड मेक इट योरसेल्फ आल्सो. ये है ना पॉइंट्स आपके ज्यादा टच हो रहे, 1 2 3 4. अब इसको डेली पे कन्वर्ट करो. कल 24 के बाद जाके रिलायंस को देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है. अब आप इसको 4 आवर, बड़ी बड़ी कैंडल्स अब छोटी छोटी होनी शुरू होगी ना. अब इसको 15 मिनट्स पे, ये आपका स्टॉप लॉस खड़ा होना चाहिए 2381.
अगर आप ट्रेड में हो तो यहां तक बैठे रहो। अब आपका जब ये लो कटेगा तो आप ट्रेड से बाहर हो, नहीं तो आपने यहां पे एग्जिट करना। एज सिंपल एज दैट। आप इसको 5 मिनट्स में भी देख लो, अभी तक आपका पैटर्न कटा नहीं है, आप अभी भी 2381 पे ही बैठे हो। So this is how the top-down analysis is done for a stock, and you write it, और आप सोचते नहीं हो कि आप राइट कैसे कर रहे हो, आप जाने दो इसको। प्रॉफिट बनाना चाहिए, और प्रॉफिट कम्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। Any questions now, because I'm almost done now. सर एक बार मारुति देखेंगे? क्यों सर? आप खुद देखो ना सर, मेरा तो देखना डिफरेंट है। चलो अब मैं आपको मारुति बताता हूँ। चलो, आपको 5 मिनट्स क्या बता रहा है सर? अब मैं, आपने जैसे देखते हो ना, मैं आपको आपकी नजर से दिखाता हूँ चार्ट। आपको मारुति क्या बोल रहा है सर? आई एम लुकिंग एट 5 मिनट्स चार्ट प्लीज। सर सीखना है ना तो ओपनली डिस्कस करो, मैं आपको बताता हूँ आपके मारुति क्या बोल। 7760 सपोर्ट है लास्ट, ये नहीं तोड़ना चाहिए। सर मैंने आपको पूछा 5 मिनट का चार्ट आपको क्या इंडिकेशन देके गया? मैं मारुति में आज हो सकता है बाय करके गया, पवन सर ने तो बाय किया, मुझे पता है। सर चार्ट को देखना शुरू करें। ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा है। नीचे 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 नीचे, यहां क्या हुआ है? सर आपने अगर यहां पे भी पकड़ा होता ना, ये 7769 और 9 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप शाम तक जाते जाते भी 50 रुपए बना जाते। मैं आपको आप ही के तरीके से एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। आप 5 मिनट्स का चार्ट देख लेते हैं, प्लीज माइंड मत करना सर, बिकॉज मैं ये गलतियां कर चुका हूँ। Now what is the momentum in Maruti? Bearish, bullish or neutral, sideways? टॉप डाउन एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका मारुति नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें अभी मोमेंटम बेयरिश की तरफ चल रहा है। नाउ वी कम डाउन टू वन स्टेप लोअर। दिस इज आवर एरिया ऑफ रीसेंट इंटरेस्ट मारुति में। ये एरिया हमारे 1 2 3 4 5 टाइम्स। अब मारुति हमारे लिए एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये बन रहा है। इसको जरा ध्यान से सर एनालाइज करना। मैंने ये कैंडल भी उठा सकता था, मैं ये भी उठा सकता था, मैं रीसेंट डाटा देख रहा हूं। क्या हुआ सर? आपकी मारुति नीचे क्लोज कर रही है। अगर कल यहां पे ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, ये इस लाइन के ऊपर नहीं जाता सर, ये आपको यहां मिलेगा 7100 के पास। आई एम टॉकिंग ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज। मैं आपके आर्ली डेली टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं आपको स्ट्रॉन्गेस्ट चीज बता रहा हूं। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया देखो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बारी इस एरिया पे उसके साथ कोई एक्शन हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में। अब आपकी मारुति इज इन ए वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन। अगर ये 8000 के ऊपर कल नहीं जाके बंद होती है, वी आर लाइकली टू सी मारुति आउट हियर। हाँ, छोटे स्विंग ट्रेड के लिए 400-500 200 रुपए के लिए आप कर सकते हो, बिकॉज इसका रेंज जो है वो भी 200 रुपए है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का। आप 50-100 रुपए ऊपर गई तो आप कर लो। अब इसको आप डेली टाइम फ्रेम पे, आपको कहीं मोमेंटम लग रहा है सर ऊपर जाने का?
अब इसको आप 4 आवर्ली पे देखो, आपकी डोजी नीचे बनी है। So this is how you analyze the stock. आपकी एंट्री यहां बनेगी 8090 के पास फॉर दिस टारगेट। इफ यू ट्राई टू प्ले हेयर कि मैं यहां से उठाऊंगा सर, ट्रस्ट मी, आप इसको यहां मिलेगी आपको बैंक मारुति। या तो आप पवन सर की तरह एक्सपर्ट हो खेलने में, उन्होंने इसी में 4 मूव ऐसे खेलनी है कि ये इसने भाग जाना है, उन्होंने पैसे बना के बाहर निकल जाना है, या हम इसको बाय रूल्स खेलें। आप कह रहे हो 7660 सर, मेरे लिए तो 7600 का कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो तो डेली का 4 आवर्ली का सपोर्ट है। 4 आवर्ली को तो कुछ समझता ही नहीं है सर, इतना बड़ा शेयर 4 आवर्ली को कुछ करना नहीं। आपने जब स्विंग ट्रेड खेलना है तो आपको बड़े लेवल पे खेलना है सर। फिर सो अब आपको एक रफ आइडिया हो गया होना है कि हाउ वी ट्रेड इट इन ए ऑन ए स्विंग ट्रेड बेसिस। प्ले ऑन द स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लोर, डोंट ट्राई टू प्ले ऑन ए अनइवन फ्लोर। अब आपका देखो 4 आवर का वीकली का टाइम सपोर्ट, जितना मर्जी मारुति यहां से गया हो, इसके नीचे थोड़ी जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 बार, 6ठी बार नीचे चला गया। दिस इज 6th टाइम। एनालाइज लॉजिकली, ये मत सोचो यहां से कोई करिश्मा हो जाएगा ना। करिश्मा हो गया तो अच्छी बात है, हम लॉस खाने थोड़ी आए, बट यहाँ पे तो कुछ हो रहा था ना सर। अब अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम में करो, ऑलमोस्ट आपके ये लेवल रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अगर आप इस पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, अगर मैंने वीकली के विक्स ले लेते हैं, लेट्स से हैड आई पुट अ विक आउट हियर, ये दोनों विक्स के बीच में डाल देता एंड ये लेवल में करता, अब आप पे एक एक लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे। सो अगर लेवल्स एक जगह रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो दूसरी जगह भी उसी कंसेप्ट पे रिस्पेक्ट होंगे। अब आप मुझे किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं बता सकते कि सर ये बुलिश मूव में है, इसका बुलिश है दूसरे तरीके से है, मुझे दूसरा तरीका पता है, पर अभी बड़े टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड के लिए नहीं, ये इंट्राडे के लिए स्टॉक है। अभी आपका इंट्राडे के लिए क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूं। See this level, it has respected this level. तो आपको यहां तक की तो राइट पक्का देगा, इसको रीटेस्ट करने जरूर आएगा। अब ये भी देखो नीचे गया तो इसी को रीटेस्ट, इसको रीटेस्ट करके फिर हो सकता है चला जाए, ऊपर जाए या नीचे गिर जाए। ये तो इसका स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा। अब मान लो कल कोई अभी रात भर में रशिया कुछ और नया कांड कर देता या अमेरिका कुछ कांड कर देता, मार्केट खुलेगी यहाँ पे। आपके तो सारे 7600 का भी सपोर्ट गया, क्योंकि उसके बाद उसने अपना मेन वीकली का सपोर्ट जो दूसरा पकड़ना है, वो आपका ये लेवल है जहां पे मैक्सिमम रुक रहा है। ठीक है सर, अब आप लोग सारे स्टॉक्स को ऐसे एनालाइज करो सर, मैं तो कर लूंगा। मैं तो आप कोई भी मुझे स्टॉक दो, मैं तो बहुत आसानी से एनालाइज कर लेता हूँ, मेरी आदत है। मैंने अब क्योंकि वो मुझे याद हो गए कि मैंने करना कैसे। सो मैं आपको बताता हूँ, एनीबडी कैन फाइंड आउट एनी स्टॉक व्हिच इज ऑन वीकली सपोर्ट लेवल्स। एनीबडी, एनी स्टॉक। भारतीय एयरटेल। कमल सर, नौकरी। अब प्लीज ना मतलब, नफरत है मुझे नौकरी से। मैंने देखना भी नहीं है गुस्से में आके उसको, इसे यूजलेस शेयर है, मुझे नफरत है उससे, बहुत लॉस। स्टेट बैंक, अपोलो हॉस्पिटल। सर ये देखो भारतीय एयरटेल, दिस इज ऑन अ वीकली सपोर्ट, मैक्सिमम पॉइंट्स बीइंग टच्ड हियर। अब आप इसको डेली पे देखो, अब आप इसको 4 आवर्ली पे मिला रिवर्सल आपको। सर इतनी बड़ी विक आई ना जिस दिन रशिया ने अटैक किया था 24 फरवरी को, तो ये बड़ी विक आई थी, पर अपनी वीकली सपोर्ट के नीचे नहीं गया वो। ये है स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस।
रशिया ने यूक्रेन पे जितना मर्जी अटैक कर लिया, कैपिटल तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि उसकी 4 जो गैरिसन सिटीज है उसको रोक के बैठी हुई है। अब उसको अल्टीमेटली वहां पे वैक्यूम बम पता नहीं क्या कुछ फेंकने की जरूरत पड़ रही है। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वन ऑफ आवर इंडियन स्टूडेंट्स आल्सो। बट आपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया में खेलना है। अगर आप इसको 1 आवर पे जाके इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे ना, आप ये तो आपने तो ये विक को तो पूरा निगेट कर दिया ना। आप फिर कहेंगे नहीं यार मैं 15 मिनट पे उठाऊं, आप ये विक कहां गई आप? तो इसके लिए याद रखना, व्हेन यू आर डूइंग अ स्विंग ट्रेड देन देयर आर रूल्स आर क्लियर। रूल्स आर रूल्स, मैंने आपको आज किताब ही पढ़ा दी पूरी। तो ये भाई प्लीज नो मोर स्टॉक्स। ठीक है पवन सर, अब आपको एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स बना दें, फिर बंद करें सेशन। यार 1 घंटा हो गया बोलते हुए। सर बहुत बढ़िया आपने कराया सर, बस प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, मसला हल हो जाएगा। नहीं किसी को मेकर, आप इनको एक बार थोड़ा सा सेशन इनका कोई थोड़ा सा डाउट। सर एक्चुअली मैंने ना सिस्टम नहीं ऑन किया आज, कल रात सारा जागते रहे तो आज सिस्टम नहीं ऑन किया, अभी तो नींद आ रही है जबरदस्त वाली। ओके चलो, अब मैं सबको जाते जाते ना एक चीज दिखाता हूँ। दिस इज गोल्ड, गोल्ड ड्रॉइंग्स। गोल्ड में क्या मोमेंटम है सर आपका? मेरे से पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं सबको पूछ रहा हूँ, आपको तो अच्छा। पता ही, आपको पता ही। सो मंथली में गोल्ड अभी तक फुली बुलिश नहीं हो पा रहा है इस मंथ में। पिछले मंथ में वो पागलों की तरह भागा हुआ, बहुत लोगों के अकाउंट, फॉरेक्स के अकाउंट खाली कर गया वो पूरा। अब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर, दिस इज वीकली मोमेंट बुलिश। आई डोंट नो बाकी अभी महीना पूरा बाकी है, ऊपर तोड़ के जा सकता है, बट आप इसको ध्यान से नोटिस करो। ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जहां पे गोल्ड आके रुका है। सर वॉर होगी, गोल्ड उसको तो तोड़ ही नहीं पा रहे। आपका गोल्ड का जो मर्जी है, आपका लेवल इसको नहीं क्रॉस करता गोल्ड अभी नियर फ्यूचर में भी। जो मर्जी आप कर लो, यहाँ पे एक न्यूक्लियर बम फटेगा शायद फिर क्रॉस करता है, पर इसको नहीं क्रॉस करता अभी। अभी तो आप ये देखो जाके हो क्या रहा है इसके सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे। इट्स नॉट एबल टू क्लोज अबाउट 1918 ऑन ए वीकली टाइम फ्रेम बेसिस। दिस इज द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब आप इसको और ध्यान से इसको बाइफरकेट करें। यहां क्या हो रहा था, फेड के रेट्स आए, ये हो रहा था, गोल्ड में ये होगा। इस एरिया में क्या हो रहा था, गोल्ड एक आराम से अपने वीकली सपोर्ट में बैठा हुआ था, लाइक एन एनाकोंडा। उसको शिकार मिल नहीं रहा था। सडनली रशिया ने एक बम फेंका और देखो क्या भागा गोल्ड। तो कहां तक भागा, यहीं तक, यहाँ मैक्सिमम यहां तक जाएगा, यहां से फिर इसको सेल बचेगी। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे आ गए ना, सेलर्स बीच में। अब इसको 4 आवर पे देखो, आगे सेलर्स आपके। अब आप इसको 15 मिनट पे देखो, आप यहां तक राइड कर रहे थे, आपका ये स्टॉप लॉस था 1937, यहां हिट हो गया, आपका तो स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये तो लोअर हाई बनाता हुआ नीचे आ रहे हैं। अभी तो वॉर चल रही है हमारी, तो गोल्ड को क्या हो गया? सर इतने बड़े बड़े हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर्स है ना, हम लोग को बेवकूफ बनाने के लिए। और अगर हम मार्केट का स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे तो हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं और हम यहाँ एग्जिट लेते हैं। यही मेरे साथ नौकरी में हुआ है। डिस्पाइट नोइंग ऑल द पॉसिबल मेथड्स, मेरे से नौकरी देखो क्या बड़ी मेरे से मिस्टेक हुई है। 1 लाख रुपए का लॉस खा रहा हूं मैं अभी इसमें। नौकरी में क्या है, कहीं पे लग रहा है कोई मोमेंटम है, ये तो नीचे जा रहा है। अब ये कहां जाके रुका है?
मैंने सिर्फ जल्दबाजी कर दी नौकरी में एंट्री करने की। परफेक्ट एंट्री नाउ, स्ट्रॉन्गेस्ट एंट्री हियर। हायर हाई, हायर हाई, आपका ये स्टॉप लॉस। आप यहां से शुरू किए होंगे 4426, अब आपका स्टॉप लॉस 4540 के पास आके 120 रुपए ऊपर आपका स्टॉप लॉस पड़ा है। सर नौकरी किसी भी एंगल में अभी तक बुलिश नहीं है सर, वो अपने सपोर्ट पे है, उसने अभी अपने हायर कोई एक, उसने सिर्फ 15 मिनट पे स्विंग लिया, आप उसको भी स्विंग के लिए ले सकते हो। जब तक अभी वो एक बार नीचे आके फिर ऊपर नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं जाता है, तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे गिर सकते हैं। ठीक है सर, नाउ कैन वी क्लोज द सेशन इफ यू ऑल परमिट मी, और एनी डाउट्स? Awesome session, sir. मजा आया, बोर तो नहीं हुए यार? Really wonderful, sir. थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी? थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। नहीं मिलेगी, मैंने पहली बात मैं क्या बिल्कुल अभी बोली? 10:08 पे ज्वाइन करा। तो तुम अगर बाहर घूम रहे थे तो मैं क्या करूं यार? प्लीज मैंने तो आज आपको बोल दिया है कि लॉस होने के 99% चांसेस नहीं है, अनलेस कि बम फट जाए, अदरवाइज आप प्रॉफिट ही बनाओगे। चलो जाते जाते ना सबको एक बैंक निफ्टी की टेक्निक सिखा देते, मैं बहुत करता हूँ ये, मैं कोई इंडिकेटर नहीं यूज करता, मुझे नफरत है इंडिकेटर से। ये मैं आज करता हूँ, बहुत कॉमन है, मैं 5 मिनट्स पे करता हूँ, मैं कोई इंडिकेटर कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बैंक निफ्टी को पहले 1-1.5 घंटा ऑब्जर्व करता हूँ ये कर क्या रहा है। ठीक है, 1 घंटे में उसने एक स्विंग बनानी, एक हाई बनाना, एक लो बनाना, मैं वहां एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मेरी आदत है। ठीक है, ये था, यहां से बैंक निफ्टी ऊपर गई, मैं बैठा रहा हूं, आराम से बैठा रहा। एक बार बैंक निफ्टी नीचे जरूर आएगी दोबारा, अब आप इसको ध्यान से, लोअर आई, लोअर आई, जैसे इसका इसने लो काटा, मैं इस लेवल की कॉल सेल कर दूं, 35,400 की मैं कॉल शॉर्ट कर। इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता, बहुत बहुत मामूली सा स्टॉप लॉस है, जो 35,600 का प्रीमियम होएगा ना, जो उसमें 30-40 रुपए का गैप है, मैं वही डाल के छोड़ देता हूं। अब आप देखो, अब क्या किया बैंक, नीचे गई, एक ये लो और मुझे ये लो काटा, अब मैं वेट कर रहा हूं कि कौन सा हाई बनाते, तो ये हाई बना और मेरा लो कहां चला गया, यहां पे। प्रैक्टिकली मैंने कितने पॉइंट्स का राइड लिया, 34,900, और मैंने 500 पॉइंट दूर की कॉल सेल की है, मैंने बाय नहीं किया, कुछ सेल किया। मार्केट साइडवेज भी हो जाए मैं लॉस में नहीं जाऊं। अब मार्केट ने यहां पे स्विंग लिया ऊपर, अब ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा लो। अब मार्केट ऊपर जाके इसने मेरा लो काट दिया, मेरा लो कहां, हाई कहां आ गया, यहां आ गया, मार्केट नीचे आ गई। अब इस लेवल पे मेरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, मार्केट ऊपर गई और हल्का सा नीचे स्विंग मारा। अब मेरा बताओ स्टॉप लॉस कहां, मैंने कितना राइड कर लिया अप्रोक्सीमेटली, यहां से लेके यहां तक मैं पूरा राइड करता है। जैसे ही इसका इसने हाई काटा, क्योंकि इसने मुझे यहां फर्स्ट इंडिकेशन दे दिया कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये टाइम 2 बजे के करीब का था, और वहीं से मार्केट ने एकदम खींचा। इस टाइम अकॉर्डिंग टू द डाटा विच आई हैड, और जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डॉक्टर पवन सर के पास है, 16,650 की क्या कहते हैं पुट्स
दबा के शॉर्ट हुई, ITM पुट शॉर्ट हुई है, प्लीज आई एम टेलिंग यू, 16,600 की पुट शॉर्ट हुई है, 1800 लॉट इन मैटर ऑफ जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट में 1800 लॉट शॉर्ट हुए थे। इसका मतलब 16,600 की पुट शॉर्ट होने का मतलब है दे वर डैम बुलिश, मार्केट खींचेंगे, और क्या खींची उन्होंने मार्केट। सो ये स्ट्रक्चर में अगर आप ऐसे लाइनों को घुमाते जाओगे तो इसमें भी बहुत पैसा बन जाता है। मैंने निफ्टी में किया था, बहुत मजेदार किया था, पर बाद में फंस गया था, मैं राउंड पे चला गया। निफ्टी ने भी आपको वही स्ट्रक्चर, ये हाई लो, हाई लो कट गया, मेरा यहाँ पे आ गया, ये इसी लेवल पे हुआ। नाउ यू सी व्हाट हैपेंड हियर इन निफ्टी, ये मेरा लो था, यहां उसने मुझे क्या इंडिकेट किया कि मेरे पिछले हाई के बराबर ये हाई आ गई, और यहाँ पे जब नेक्स्ट लो लगा उसने हाई नहीं काटा मैंने, उसने मेरा लो काटा है फिर दोबारा, पर ये रेंज मेरी नैरो होगी। अब मैं नीचे आ गया, मार्केट मूव डाउन। आपको बताओ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी ने कैसे नहीं इकट्ठे मूव किया, एंड एट 225 we had the same formation in bank nifty and nifty both, और इस टाइम 16,600 की कॉलेज शॉर्ट पुट शॉर्ट हुई है दबा के, इन द मनी, इन द मनी, ये इस टाइम इन द मनी थी पुट्स, और वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर करके ये यहाँ पे हम लोगों ने, मतलब हमने जो राइट पकड़ा, एक एक लॉट के पीछे 50-60 रुपए मिले आधे घंटे में, और मार्केट खींच के ले गई ऊपर। मार्केट अभी भी मेरे लिए निफ्टी फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, कल के लिए तो ये बुलिश में है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, स्विंग फिर लेगी ये कल भी। नो प्लीज सर, नो रिकॉर्डिंग्स, नो रिकॉर्डिंग्स, आई विल नॉट शेयर द रिकॉर्डिंग्स। अब ये जो क्लासेस होंगी दे विल बी राइट फ्रॉम द बुक्स फॉर यू ऑल टू डू इट, रिवाइज इट, प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। सर ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने आपको इंट्राडे सिखा दिया ना इस पे, फिर तो आप लोग नहीं बनाते लॉसेस। मैं इंट्राडे आपको लास्ट में सिखाऊंगा, लास्ट में। Pritesh ji, I know you have, I'm not a paid teacher sir, I'm a free teacher, मेरे तो वेबिनार्स आते रहेंगे यार। कोई टेलीग्राम का लिंक डाल दे प्रीतेश जी के लिए सर, हमारे किसी भी चैनल, किसी भी टेलीग्राम पे है। मैं बाकियों की तरह हल्ला नहीं मचाता हूँ कि मैंने ये बोला था मार्केट में ये हुआ, मुझे नहीं अच्छा लगता। I make you dependent if I tell you what is happening in the market. कमल जी सॉरी, एक वीकली सिर्फ TCS देख लीजिए ना, वही सपोर्ट है जैसे आप बता रहे हैं, सिर्फ कंफर्म कर दीजिए, ढूंढा है मैंने उसको। सर TCS को तो हाथ भी नहीं लगाना, अभी TCS को तो हाथ भी नहीं लगाना है सर। आपके सामने मोमेंटम देखो किस साइड, किस डायरेक्शन में, दैट इज बियरिश। इतनी बड़ी कैंडल आई है, उसके नीचे ही उसकी ओपनिंग है, अभी नीचे ही है अभी। अब इसको वीकली में देखिए, 5-6 पॉइंट्स। अभी तो आपके इसने नीचे आना है सर, ये भी नीचे आएगी, ये जितना मर्जी ऊपर चला जाए, अभी आपका ये एक बार नीचे आएगा नहीं, वैसे निकल जा गया, टच करके ऊपर चला गया, शुड गो अप फ्रॉम हियर सर। मेरे हिसाब से दिस वाज द एरिया टू पिक इट अप। ये जिस दिन रशिया ने बम फोड़ा ना ये वॉर, उस दिन भी वो अपने वीकली सपोर्ट पे ही खड़ा रहा। सो नाउ इट इज ऑलरेडी गॉन अप, तो ये ऑलरेडी 200 पॉइंट की रैली दे चुका है। सो लेट्स फाइन ट्यून इट सर, वी विल वेट फॉर इट हियर समवेयर हियर 3448 3450 के पास इसको पकड़ेंगे। ये 100 रुपए कम से कम नीचे है, आ जाएगा एक बार, पर नहीं आया तो सर ये आपका वीकली टाइम, लेट्स सी इट। नहीं सर ये आएगा नीचे, इसने अपने हायर टाइम फ्रेम का भी तोड़ दिया। वन स्विंग से लोअर लो बनाना शुरू कर गया सर, यहाँ पे तोड़ देगा, ये नीचे आएगा एक बार सर, तो शुड कम डाउन। ये मैंने आज सुबह किसी के लिए एनालाइज किया, मेरे हिसाब से भी नीचे आएगा, या तो अगर इसके ऊपर निकल गया 3570 के ऊपर, फिर तो बुलिश हो जाएगा, पूरा ऊपर तक जाएगा पूरा, नहीं तो ये नीचे आएगा एक हाथ। I don't know, I'm not an expert, so please consult your financial advisor. I'm not an expert, but I always analyze things my way.
एक ये अल्ट्राटेक जरूर नजर में रखना। अल्ट्राटेक को जरूर नजर में रखना। ये आ रहा है बस अब बाइंग जोन में, डाउनवर्ड मोमेंटम है। वीकली में देखो कहाँ मिलता है हमें, 1 2 3 4 इसके नीचे। सो दिस इज द नेक्स्ट वीकली सपोर्ट व्हिच वी आर लुकिंग एट। इट इज इन अ वेरी क्लोज रेंज ऑफ दैट। ये यहाँ पे 6200 63 के पास आपको कहीं मिलता है, फॉर्मेशन देता है तो इसको पकड़ लेना। ठीक है सर, आई थिंक सो इट्स टायरिंग फॉर मी आल्सो। ठीक है एवरीबॉडी। जी Yes, sir. Thank you very much. So we will Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. But time यही रखना सर 9 o'clock if possible. oh sure अब next हम करेंगे see next we will do is we will do V pattern. We will do V pattern. What is known as V pattern? How you trade a V pattern? Okay. Thank ये you, भी sir. तो ये भी तो V pattern है ना। अब आप इसको कैसे ट्रेड करोगे? कमल जी सर, कल का सेशन वैसे, हाँ जी सर, कल के सेशन का लिंक आपने भेजा था ना, कल अवेलेबल है ना सेशन सर? कल सुबह एक ऐसे अच्छा कल सुबह ना एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर वाले मेरे साथ बात हुई है और they are going to show us all the their it's economical, it's somewhere around 14,500, it's not like 70,000-80,000 का है, 14,000 का सॉफ्टवेयर है। 7-8 मैं तरीका बताया था, 7 दिन डेमो है, 5-6 जीमेल मंगा लो तो 10 आपको महीना 1.5 महीना आपका फ्री निकल जाएगा उससे। सो वो एक सॉफ्टवेयर हम ट्रायल बेसिस पे कल वो कर रहे हैं। अगर एनीबडी वांट्स टू लर्न दैट सॉफ्टवेयर, उसका फ्री वर्जन डाउनलोड कर लो, 7 दिन का ट्रायल है, मल्टीपल जीमेल और मोबाइल्स के ऊपर बना लो एंड मेक मनी एंड देन पे इट टू देम। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, सो टुमारो वी विल जॉइन, टुमारो वी विल डू उनके साथ करेंगे। फिर कल पवन सर ने मेरे ख्याल क्लास लेनी है हमारे, कल या परसों वो लेंगे, फिर हम देखते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? तो ये है मेरे ख्याल इन्वेस्टार है, इन्वेस्टार है। मैंने किया था एक दिन, बैठा कर रहा था, इन्वेस्टार है, इनका ही है कल सेशन। मिस्टर अनुज एंड मिस्टर वो आएंगे कल सेशन में, तो आस्क योर क्वेश्चंस। तो मैं सबको ये बोलता हूं, ये ध्यान रखना, ये देखो भाई, ये देखना ध्यान से, इसको इंडिगो को देख लो। एक जाते जाते टिप दे रहा हूं मैं, कल इंडिगो आपको अगर फॉर्मेशन अच्छी दे, आपके वीकली सपोर्ट पे देखो 4 आवर्ली में हैमर बन गया। अगर इसके ऊपर आपको मिल जाए 1852 के ऊपर, तो पकड़ना इसको, स्टॉप लॉस लगा के 32 रुपीज का छोड़ देना। आपका ये लेवल है पहला, 200 रुपये। चले भाई, सर आप इसकी क्लास कब कंटिन्यू करोगे? मेरे तो आते यार, जिस दिन मुझे पवन सर दे देंगे कि लगा लो क्लास, में लगा दूंगा क्लास। आज मैंने उनको पूछा आपने लेनी है, वो कहते नहीं आप लो, मैं ले लेता हूँ। मैं तो आज सुबह से बैठे वो पढ़ रहा था, किताब पढ़ रहा था। आज मेरी आज 5th या 6th रिवीजन थी, तो मैंने आज जितना पढ़ा था मारुति पे क्या व्यू रहा आपका? मेरे को सेम पैटर्न पे मेरे ख्याल से मारुति भी है। कौन से पैटर्न पे भाई मेरे? सर एक चीज पूछनी है, आप क्लास कंटिन्यू करोगे, उसको मैं लिंक में कैसे पता लगेगा कौन सी क्लास चल रही है? मेरी सर फर्स्ट मेरा क्लास जो सर अब आपसे बाद आपको जो आएगा उस क्लास का, जैसे टॉप डाउन एनालिसिस आया था ना, हाँ जी टॉप सर। डाउन एनालिसिस 1 आज होगी, तो इसके बाद टॉप एनालिसिस 2 करके आएगी। ओके सर। और मेरी जो अनाउंसमेंट होगी आपको 4 या 5 घंटे पहले मैं बताता हूँ। ठीक सर। सो यू ऑल कैन डू इट। ठीक है, ओके सर। चलो, ओके एवरीबॉडी, बाय, थैंक गुड यू। नाइट एवरीबॉडी, ओके, सी यू। Thank you very much, sir. अंकु सर।